ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି। ତ ଏଠାରେ କବି କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ସାରଳା ଦାସ। କାରଣ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ପଢ଼ିଛେ ଯେ ତା ପୂର୍ବ ବିଷୟ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଛେ, ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାନତା। ତ ଏଥିରେ ସେମିତି ପଢ଼ିବା ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିଥିଲେ ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାନତା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇଛି ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି, ତାର ପର ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାନତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀମ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଜଙ୍ଘ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ କ'ଣ? ମାନଗୋବିନ୍ଦ। ତ ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଭୀମ। କେମିତି? ନା ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଘକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର କେଉଁଥିରେ? ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାନତା ବିଷୟ। ତ ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାନତା ବିଷୟ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ିବା କେଉଁଥିରେ? ନା ଏଇ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି। ତାମାନେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ, ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର କୁରୁସେନାର ସେନାପତି ସବୁ ହେଉଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ସବୁ ସେନାପତି ହେଉଥିଲେ? ନା ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଭୀଷ୍ମ, ତାପରେ ହେଲେ ଦ୍ରୋଣ, ତାପରେ କିଏ ହେଇଥିଲେ? କର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏହିପରି ସବୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରେ ହେଇଥିଲେ ଶଲ୍ୟ। ତ ଶଲ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଯେଉଁ ଆମର ନକୁଳ ସହଦେବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଥିଲେ ଶଲ୍ୟ। ତ ଶଲ୍ୟ ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସାରଥି। ତ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ତାପରେ ସିଏ ନିଜେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କୁରୁ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟର ସଭାପତି ମାନେ ସେନାପତି ହେବି ବୋଲି। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କୁରୁ ସୈନ୍ୟ ସେନାପତି ହୋଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ସମସ୍ତେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଯାହାବି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ନା ନିଜର ଯେଉଁ ସନ୍ତାପ, ନିଜର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ନିଜର ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା, ସେ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ? ନା ମାନସରୋବର ନାମକ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ବା ମାନସରୋବର, ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଯାହାକୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୁହନ୍ତି। ଓକେ। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ସେ ଯାଇକି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ନିଜର ସେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା, ସେ ନିଜର ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଳା ଅଛି, ସେ ଜ୍ୱାଳାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ସେ ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଶାରଳା ଦାସ କହୁଛନ୍ତି। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର କିପରି ସେ ନିଜେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ନ ହେଇଥିଲା, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସେ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ କବିତାରେ ପଢ଼ିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିବା ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜୀବିତ ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଝଙ୍କଡ଼ର ସାରଳ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସେ କାବ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ସାରଳା ଦାସ ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରଳା ଦାସ କହିସାରିଲେଣି। ଓକେ। ତ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ସେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ଏଇସବୁ ପୁରାଣ ମାନ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଶରଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ଏଠି ଟିକେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରର କାହାଣୀ ଥିଲା। ବ୍ୟାସ ସରୋବରର କାହାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ମହାଭାରତ ଲେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଲେଖୁଥିଲେ, ତ ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖୁଥିଲେ? ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖୁଥିଲେ। ତ ମହାଭାରତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖୁଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ନା ସେତେବେଳେ ଶିବ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ନିଜେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। କେଉଁଥିପାଇଁ? ନା ନିଜର ମାନେ ବହୁତ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଥିଲେ,
दक्ष प्रजापतिଙ୍କର ଶିରଛେଦନ କରିଥିଲେ କିଏ ଶିବ ନିଜେ। ତ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ସେ ବି ତାଙ୍କଠୁ ପଳେଇଥିଲେ ବା ଯାହାକୁ ସତୀ ଆମେ କହୁଛେ। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ସେଇ ଯକ୍ଷଙ୍କର ବଧ କରି ବା ଯକ୍ଷଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଛେଦ କରି ତାପରେ ତ ତାଙ୍କର ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ବା ଛାଗ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଥିଲେ କୋଉଥିରେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ମିଳିଲାନି ଆଉ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଇ ଯୋଉ ସନ୍ତାପ, ସେଇ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ, ସେ ଯୋଉ କ୍ରୋଧର ଯୋଉ ଅଗ୍ନି, ସେ କ୍ରୋଧର ଯୋଉ ଜ୍ୱାଳାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପାଖରେ ଆସିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଶିବ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଉଠୁ ଶିବ ରାଗିଗଲେ, କାରଣ ଶିବ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ଦୁଃଖ ଏତେ ଗ୍ଲାନି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ବସିବେ ବୋଲି, କାରଣ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତ। ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଲେ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶିବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇକି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଶରଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତାର ଶତ୍ରୁ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ସେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସହଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୂଚନା ପାଇ ଭୀମ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି, ମାନେ ସିଂହନାଦ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ସେ ଜିନିଷ ଆଣିକି ସେଥିରେ ରଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭୀମ ତାଙ୍କର ମାନଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ପଢ଼ିବା। ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିମା ଜଗନ୍ନାଥ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ତ କିଏ ଆସି କହିଲେ? ସହଦେବ। ସହଦେବ କିଏ? 5 ପାଣ୍ଡବ ଯିଏ ଥିଲେ। 5 ପାଣ୍ଡବ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ। ତ ସହଦେବ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସହଦେବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କଠୁ ପଠେଇକି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇକି ମାନସରୋବର ବା ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଆସି କ'ଣ କହିଲେ, ଆସିକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସଭା ଥାଏ ନା ପ୍ରତି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ସଭା ବସେ। ସେ ସଭାରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହୁଏ? ସେ ସଭାରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଏହା କି ଆଜି କେତେ କ୍ଷତି ହେଲା, ଆଜି କେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ କଲେ, ଆଜି କେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗବାସରେ ଗଲେ, ତ କେତେ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଲା, କେତେ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ କାଲି ପାଇଁ ଯୋଜନା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାରଣ ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖି କାଲି ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଜନା ବନାନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ସେମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ କ'ଣ ଠିକ୍ କଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁକୁ ନେଇକି ଯୋଜନା ବନାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ମିଳିତ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସହଦେବ ଆସି କ'ଣ କହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆସିଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ସେଠି ଯିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ବସିଥିଲେ, କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାରଥୀ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଯାହା ବି ନିଆଯାଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନୁମୋଦିତ କଲେ ହିଁ ସେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ନହେଲେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନେ ନେଇପାରନ୍ତିନି। ତ କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବସିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ କାହାର ଅଛି? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିର ଯାହା ବି ସମାଧାନ ସେ କାହାଠୁ ଆଣନ୍ତି ନା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ବା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କଠୁ। ତ ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିମା ଜଗନ୍ନାଥ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ତ ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଏଠି ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଏଠି ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ଏଠି ଈଶ୍ୱର କିଏ? ନା ଶିବ ହେଲା, ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ସେଇ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ମାଗିପାରିବ। ଏଠି ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଂହନାଦ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ସିଂହନାଦ ଅଛି ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ, ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ପବନର ସୁତ କାହିଁ କହିଲେ ନା ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଛେ ମହାଭାରତରେ 5 ପାଣ୍ଡବ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ
दैव प्रभाव जात होती देव देवता मान आशीर्वाद जात होती से केमती आम जाचे ना कुंती जितेबाला दुर्वासा मुनिकर सेवा शुश्रूषा करते जितेबाला से विवाह कर पंडु विवाह कर पांडु को तो से से कौन करते ना तांको दुर्वासा तांकर जो जहाँ भी से सेवा शुश्रूषा करते से सुखी हुई से संतोष प्रकाश करी कुंती को गोटे वर जाची आ से वर कौन थिला ना से जो समय जेकोसी देवता को निज अंतर मनरू डाकिले बा तांकर स्तव कले से देवता से मंत्र रे बांधी ही जिवे और सही मंत्र आ गोटे मंत्र तांको देथिले किए दुर्वासा मुनि काहाको ना कुंती को जदि सही मंत्र जाप कला से मंत्र जाप करी जेकोसी देवता को जदि स्मरण करती ताहले कौन हम ना से देवता स्वयं आसी कौन करेंगे ना तांको पुत्र दान करेंगे तो सही हिसाब से कुंती कौन करते ना जिते बड़े पांडु को अभिशाप मिलता जे से कौन करते जो अभिशाप मिलता कारण जिते बड़े गोटे ऋषि आउ तांकर पत्नी से माने जिते बड़े आनंद मनरे बाहर बुलुले तो तांको लगिला जे ये गोटे बोधे हरिण तो से समय से मारी देते तो से कथा से कहले से ऋषि से मरु मरु अभिशाप गोटे देते जे तुम्हें तुम स्त्री कौन कार्य कर जदि कौन कार्य कर तेबे ताहले तुमको तुम्हें से क्षण मृत्युवरण कर तो से कौन होता ना प्रकृत से जो मंत्रटी से समय जिते बड़े माने सब सन्यास नेले माने बाहर को पलैले आउ धृतराष्ट्र राजा हेले तो सही समय से कौन करते ना पांडु ना कुंती को अनुरोध करते जे दुर्वासा देइथिबा मंत्र को नहीं कौन करने को जप करने को जहाद्वारा कि संतान जात हे तो कौन कौन होता ना कुंती प्रथम धर्म को डाकी जहाद्वारा कि युधिष्ठिर जन्म होते धर्मंकर पुत्र तापर किए आसते से पवन को डाकी तो पवनकर सुत ये माने कौन पुत्र तो पवन का पुत्र किए थे भीम थे तापर अर्जुन पाड़ी था तो अर्जुन केमती आसते अर्जुन इंद्र आसते से अश्विनी कुमार आसी किए किए अश्विनी कुमार किए किए आसते नकुल और सहदेव तो सही हिसाब रे से कहार पुत्र थे माद्री पुत्र थे तो माद्री से मंत्र उच्चारण करते पांडुर केतोटी स्त्री थे दुईटी स्त्री थे किए किए थे गोटे होती कुंती आ गोटे होती माद्री तो से अनुसार तो से पवन सुत भीम को कहले भीम को कौन सहदेव आसी कहले जे जगन्नाथ को आगे आसी प्रणाम कले कारण से सभारे जगन्नाथ बसचंती स्वामी संबोधन कर प्रणाम कले आउ भीम को कहले जे जेहेतु दुर्योधन जाइकी मानसरोवर बा व्यास सरोवर आश्रय नहीं से तुम्हें शंकर बा शिवंग ठारू सिंहनाद नामक एक नाद एक जंत्र मागिकी आण तो गोविंदे बोहिले जेबे एमंत अच्छी भीम बुद्धि हराई किंपे कलु तू मति भ्रम ता माने कौन कहले गोविंद गोविंद ये कौन कहले जदि एमिति कथा होची भीम तो आ तू जानीचु ताले तू एठी समय नष्ट न करिकी तू बुद्धि माने निर्बुद्धिया न होइकी जेते जल्दी पारुछु ए कार्य संपादन कर कहीं ना यही जो कहीं भी देवे भीम तो भीम एथिपाई देवे माने मागिबा को जिवे भीम शिवंकर तपस्या करिवे शिव तपस्या कले शिव नहीं कि देवे आ तो थरे कौन होइतला ना शिव जते बेले शिवंकर दीटा जगह शिव रुहत कोठी कोठी गोटे होची मंदरांचल पर्वत आ गोटे होची कैलाश तो से बेले कौन से कारणरू एक दुराचारी असुर कौन करता ना तांकर कैलाश पर्वत को मुंडे की टेकी नहीं पलाऊला से कौन करते ना शिव
भीमଙ୍କୁ स्मरण करते तो भीम को स्मरण करने फल भीम आसी से राक्षस को मारी कैलाश उद्धार कर जहाद्वारा कि शिव कौन कहते ना शिव कहते जे से जो साहाଯ୍य कले भीम शिव को तो से शिव कौन कहे शिव संतुष्ट हो कहते तुम्हें माने वरदान देवाई कहते भीम से कौन से वरदान मागि नी जहाद्वारा कि शिव कौन कहते ना जेबे तोर जहाँ इच्छा हम से मत गोटे वरदान मागि नहीं जीवु तो से अनुसार गोविंद ये सब जानते गोविंद बोले एबे एमंत अच्छी भीम जे बुद्धि हराई किंपे कलु तू मति भ्रम एबे बहन तू विश्वनाथ को सिंहनाद माग रड़ीर नादे मान गोविंद बाहर हेउ बेग तो से कौन कहले ना एबे बहन तू विश्वनाथ को सिंहनाद माग विश्वनाथ किए विश्वनाथ जन शिव विश्वनाथ कहीं कह जाए से विश्वर नाथ विश्वर प्राण माने विश्वर प्राण से समस्त को सुरक्षा प्रदान करती से मंगलमय भगवान जहाँ कि से समस्त विश्वर ईश्वर से कौन कहे विश्वनाथ कहुए एबे बहन तो विश्वनाथ को सिंहनाद माग एबे जाकि विश्वनाथ बा शिव बा शंकर को तुम्हें सिंहनाद माग रड़ीर नादे मान गोविंद बाहर हो बेग ताने कौन से जो सिंहनाद जो रड़ी बाहर से रड़ीर नादरे से रड़ीर शब्द मान गोविंद किए स्वयं दुर्योधन जल्दी बाहर हो बेग माने शीघ्र ये बेगर अर्थ कौन शीघ्र बाहर हो बेग माने बाहर बेग कौटू बाहर मानसरोवर बा कौटू व्यास सरोवर किए बाहर जीव मान गोविंद बाहर ध्यानेण चिंतेला से पांडव सुंदर आसन कंपिला जे देवशूलधर ध्यानेण माने ध्यान कला कहार ध्यान कला शिवंकर ध्यान कला किए ध्यान कला पांडव सुंदर ये क्या कहुई भीम को कहुई से पांडवंकर पुत्र पांडवंकर सुंदर जी भीम से कौन कला ध्यान रे चिंता कला क्या शिव को चिंता कले आसन कंपिला जे देव शूलधर किए त्रिशूलधर क्या कहे जे शूल को धरते शूल कौन त्रिशूल को किए धारण करते शिव तो त्रिशूल को जो धारण करते से किए होती शूलधर बा शिव शिव जो आसन रे बसते से आसन कंपिला कहीं कंपिला कारण आम जाचे भक्त सहित भगवान बंधा होई था भक्त जिते डाकुची बहुत निष्ठार सहित बहुत ध्यान रे मन रे कौन सी निष्कपट मन माने किसी कपट न थाई केवल भगवान को चिंता करुँ कौन हुए ना भगवान आसन दोहली जाए से जिनस से कौचे तो ध्यान न चिंतिला से पांडव सुंदर आसन कंपिला जे देवशूलधर ध्यान न जानिला जे देव पशुपति ईश्वरे बोइले देवी शुण गो पार्वती एटी कहीं कही पशुपति समस्त पशु मान समस्त प्राणी मान पति किए होती शिव से कौन कहे पशुपति ध्यान जानिले से देव पशुपति ईश्वरे बोइले देवी शुण गो पार्वती ताले कौन कहले ना ध्यान जानिले जे देव पशुपति से जो ध्यान करते सी सब ध्यान करता शिव तो शिव से ध्यान रे कौन शोई था ना शिव से ध्यान रे सारा जगत को देखु था बुझेगा शिव से ध्यान रे सारा जगतर तर्जमा करती किए भल कला किए खराब कला कहार कर्म किपरि हम कहार भाग्य उद्धार से करेंगे क्या क्यों माने भक्त क्यों माने पृथ्वी पर योग्य किए धर्म बाटर चलती किए अधर्म बाटर चलती यही सब तर्जमा किए कर देव पशुपति तो यहीटा भी से जापारे भीम ध्यान करुच ईश्वरे बोइले देवी शुण गो पार्वती ईश्वरे माने शिव शिव कौन कहले हे पार्वती पाखे सब पार्वती बसता माँ पार्वती कहीं ना से स्त्री से अर्धांगिनी तो से ईश्वर आम भी आम देखीचे आम बाबा मम्मी जहाँ भी डिसीजन जहाँ भी घरे डिसीजन नि जाए जहाँ भी घरे गोटे सभा बसे कि जहाँ भी
घर निष्पत्ति गोटे नि जाए बाबा मम्मी दी जन मिसिकी निष्पत्ति नि ठीक तो सही अनुसार ईश्वरे बोले शुण देवी शुण गो पार्वती माने कौन ये पार्वती देवी शुण कौन होउछि से आगु जा कौन कहया चाहूँ आंभंत सिंहनाद मागुची वीर वीर भीमा भीमा किए भीम वीर भीमा आंभंत माने आंभ को सिंहनाद जो ଯନ୍ତ୍ରଟା ଅଛି ବା ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ନାଦ ବା ଶବ୍ଦ ବହୁତ କମ୍ପି କମ୍ପି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସିଂହନାଦ ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା ମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଭୀମ କ'ଣ ମାଗୁଛି ସିଂହନାଦ ମାଗୁଛି ଓକେ ତ ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଯୋଗାଇବ ଉମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଲଗା ନାଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉମା ଅଛି ଓକେ तो ये तुमको जब पढ़ो आग माने कौन सी क्वेश्चन रे पार्वती समानार्थी शब्द पार्वती तो तुम से कौन कर उमा लिखिपर ओके तो तुम्भ विचार को किस जोगाइब उमा तुम कौन विचार कर देवी कि देवीनी भीम मत यहाँ मागुची ये ठीक कि भूल तुम यहाँ कौन विचार कर मत टे शुणाओ जहाँकि किए सजेसन मागिले शंकर सजेसन मागिले कौन मागिले जे मते किसी गोटे बाट बताओ जे भीम जो जिनसा मागुची से ठीक कि भूल तमें कौन विचार कर मत कह पार्वती बोइले भीमसेन आंभ उपगारी उपगारी माने उपकारी ओके उपगारी अर्थ होची उपकारी ओके मैं लिखि दूची उपगारी माने होची उपकारी तुम बहिरे मध्य लिखाई ओके पार्वती बोइले भीमसेन आंभ उपगारी पार्वती कौन कहले ना भीमसेन तांका नाम होची भीमसेन भीमसेन तांकर उपकारी लोक तांकर भल चिंता करथुवा लोक ओके बेले बेले पांडवे आंभ कपिला संकई उद्धरी तो बेले बेले पांडवे पांडवे माने यही से कौन करते ना आंभ कपिला संकई उद्धरी कपिलास बा कैलास को किए उद्धार थे भीम उद्धार थे तुम स्टोरी टी पूर्व कही भीम किपरि कैलाश को उद्धार करते ओके तो सही कथा सी कहते तो कौन होता ना से जो कैलाश किपरि माने भीम कौन करते ना से भीम गोटे गोटे राक्षस थिला जार नाम होची अश्लेषा से अश्लेषा दैत्य जे थिला से अश्लेषा दैत्य कौन करथिला ना कैलाश को बा कैलाश उपाड़ी को नहीं जाता तो कैलाश उपाड़ी की नहीं शिव कौन कले ना भीम को स्मरण कले तो भीम स्मरण माने भीम आसिकी कैलाश जो उपाड़ी नहीं जाता ताकू से निवृत्त कले क्या अश्लेषा को तार बद्ध करी कैलाश जो माने गोटे जगह अन्य स्थान को पलाऊला ताकू बंचेले तो से जहाँद्वारा कि घर बंचीगला क्या शिव घर तो से कहते पार्वती माँ जे बेले बेले पांडवे आम कपिलास कहीं उद्धरी सत्य मना इच्छी देव जे त्रिपुरारी तो बेले बेले पांडवे आम कपिलास कहीं उद्धरी सत्य मना इच्छी देव जे त्रिपुरारी त्रिपुरारी माने तीन पुरर स्वामी जी त्रिपुरारी किए से होती शिव तो तीन पुर किए कौटा स्वर्ग मर्त्य पाताल ओके सत्य मना इच्छी देव जे त्रिपुरारी सत्य मना माने सत्य मन मन को मन सत्य कर तमें जेहेतु सी जो तुमको बंचे तुम कपिलास को बंचे तुम घर को बंचे तुम उपकार कर तमें मन जो सत्य कर गोटे वरदान देव बोली तो तार एवं समय आसी जाइए तुम्हें ताकू से वरदान टी प्रदान कर सी जहाँ मागुच जो सिंहनाद मागुच तुम्हें प्रदान कर पार्वती बोइले सिंहनाद दियसी बहन
पांडवंक हेतु तुम्भे व्रती अछ त्रिलोचन। तामाने कौन से कहले पार्वती बोले सिंहनाद दियसी बहन जे कहले जे सिंहनाद तुमे तांको जल्दी दे दिया कारण पांडवंक जोगु बा पांडवंक हेतु तुम्भे व्रती अछ माने तुमे बंची छ रक्षा पाई छ त्रिलोचन जहाँ तीनोटी आखि लोचन माने आखि सब एबे आ गोटे जो समानार्थी शब्द आसला कौन आसला ना आखि रहउची लोचन बुझेला त्रिलोचन माने तीनिटी लोचन बा तीनोटी आखि कहार तीनोटी आखि अछि शिवंकर तीनोटी आखि अछि तो पांडवंक जोगु तुमे रक्षा पाइछ त्रिलोचन सेतिपई तांकु सिंहनाद दियो बोली पार्वती कहले संकट काले तुम्भंत उद्धारंती पुण दियसी सिंहनाद प्रसन्न बदनेण तामान से कौन कहले संकट काले बा दुख काल बा तुमर जो असुविधा पड़ता किए साहाय्य करथिले तुमको किए उद्धार करथिले पांडव माने उद्धार करथिले बा भीम उद्धार करथिले सेतेबेले संकट काले तुम्भंत उद्धारंती पुण दियसी सिंहनाद प्रसन्न बदनेण दियो तांको से सिंहनाद दियो प्रसन्न बदन प्रसन्न माने हस हस मुखरे बदन ये गोटे मुखर गोटे समानार्थी शब्द हूँ बदन ओके तो बदन माने मुहरे तुम हस रखी मुहरे तुम आनंद रखी क्या दियो संतोष रखी क्या सिंहनाद दियो ना भीम जहाँ मागुची कहीं से तुम बहुत उपकार कर तुम्हें जो रक्षा पाइछ तुम कैलाश को से उद्धार कर तो से माने आमर उपकारी तो से गोटे जी आमर उपकार करे आम तार उपकार निहाती करबा दरकार जदि आम उपकार पाई से कौन लोक को आम भूली जावा ताले आम कृतघ्न हो जावा बुझेगा से जी भी आमको साहाय्य कर जब भी आमको साहाय्य कर आम तार साहाय्य करवा दरकार जमती कि ए चैप्टर मो पाखे नाला तुम मैंने मत हेल्प कल ये चैप्टर पीडीएफ देल तो मुझे जहाँद्वारा कि तुमको पढ़े पार्टी तो से जदि आमे अन्य को साहाय्य करिबा तेबे आमको मध्य किए साहाय्य करिबो कि आम पई मध्य सेमति किए आउ काहू कहबो साहाय्य करिया पई जेमति कि पार्वती मां कहउचंती काहू स्वयं शिव को कहउचंती कहार साहाय्य करिया पई भीम को साहाय्य करिया पई बुझला तो सही कथा घन घन आसन कंपई सदानंद चिरीकुटीरू काढ़ी देले से सिंहनाद घन घन आसन कंपई सदानंद सदानंद किए से भी शिव सदा माने सर्वदा आनंद सदा सदा युक्त आनंद सदानंद सदा माने सर्वदा आनंद माने हस संतोष जहाँ मुखरे सर्वदा संतोष आनंद थाए तांको कहले सदानंद सेटा भी गोटे शिवंकर अन्य नाम तो शिवंकर अन्य नाम ये हम केतेटा पढ़ले त्रिपुरारी त्रिलोचन सदानंद एति भितर तो तापर चिरीकुटीरू काढ़ी देले से सिंहनाद चिरीकुटी माने कौन ताकर जो थली बा ताकर जो मुणा अच्छी से मुणा रे कौन रखिथिले से सिंहनाद रखिथिले ताकू से काढ़ी की देले बुझेला से सिंहनाद कोथरु तयारी होता है से सिंहनाद होची महिषीर सिंगरु तयारी होता है बुझेला शिव कौन करथिले ना शिव जतेबेले सिंहनाद फुंकती सेतेबेले पृथ्वी रे कौन हुए ना पृथ्वी रे प्रलय हुए तो सेहीपरि चिरीकुटीरू काढ़ी देले से सिंहनाद ईश्वरे बोइले तू बहन होई जीवु तिनी घांटी मात्रक शब्द भीमसेन को सहिबु ता माने से कौन कहले ईश्वरे बोइले ईश्वरे माने कि शिव कहले कौन कहले तू बहन होई जीवु तू जल्दी जाइए सेठी पहुंचबु कोठी भीमसेन पाखरे आ तिनी घांटी माने तिनी थर मात्र शब्द भीमसेन को सहबू ता माने कौन ना भीमसेन को कहबू से मात्र यही जो मु जो देली कौन सिंहनाद ताकू मात्र तीन थर ही बजेबे बेसी बजेबे नहीं तो यहाँ मोर गोटे आज्ञा भीमसेन को कहबू तो भीमसेन को कौन से जो सिंहनाद को कौन से कहले सिंहनाद को से कहले जे ईश्वर कहले जे तू बहन होई जीवु तिनी घांटी मात्रक शब्द भीमसेन को सहिबू सिंहनाद आसन्ते प्रसर पवन सबदे कंपु अच्छी मृत्यु जे भुवन ता माने कौन
सिंहनाद आसन्ते माने सिंहनाद आसिबारु प्रसर पवन पवन जोर बहिला प्रखर बेगरे बहिला बुझेला किए सिंहनाद आसन्ते प्रसर पवन पवन बहिला सबदे कंपु अछि मृत्युजय भुवन जेमति बात्यारे तो सब बात्यारे तले हमर पवन बहे कोन हुए सु सु पवन सुबे माने हम सेते बेले से पवन रो स्वरटा हमहु डर लागे तो सेमति सिंहनाद आसिला से आहुरी भयंकर शब्द रड्डी छाड़ी आसिला आउ से पवन भी से अनुसार बहिला सबदे कंपु अछि मृत्युजय भुवन मृत्यु भुवन की ना हमर जो आमे जोठी वास करमी ता कोन कह जाय मृत्यु भुवन बुझिए गला तो ये भूमंडल को कौन कहती मृत्यु भुवन कहते कहीं भूमंडल मृत्यु भुवन कहते ना एपाई जे एठार जी भी जन्म निए ताहार ताहार कौन अच्छी ताहार मृत्यु सुनिश्चित तो से कौन कह जाए ना यही जिनस को मृत्यु भवन कह जाए भूमंडल को मृत्यु भवन कह जाए एमती बहुत जगह अच्छी जो कि तुम्हें पढ़ी की जापर जे श्रीकृष्ण गीतार उपदेश जो टिके पूर्व जितेबाला कुरुक्षेत्र युद्ध हो नथिला सेतेबेले कौन होता ना सेतेबेले कौन होता ना टिके पूर्व जो अर्जुन निजर अस्त्र त्याग करते कहले जे ना मु युद्ध करिबिनी कारण से माने दुई पक्ष होचंदी मोरी ही लोक मोर निजर परिवार मु कहीं निजर परिवार को हत्या करिवार पापीबा माने पाप बहन करी तो से कथा ही कहते तो जितेबाला से कथा कहते श्रीकृष्ण तक कौन बुझे जे ना जहाँ भी एठी देखुच समस्ते मरिबे कारण जो माने भी जन्म नहीं समस्त को मरवा को बाध्य हूँ अटल सत्य केवल तांका भीतर जो आत्मा थाए से आत्मा अमर कारण से आत्मा हूँ स्वयं ईश्वर आत्मा हूँ स्वयं ईश्वर गोटे अंश तो से समस्त प्राणी भितर जो आत्मा अच्छी से आत्मा अमर कारण आत्मा कौन करे आमे जमती गोटे गोटे दिन अलग अलग ड्रेस पिंधन माने दिन प्रतिदिन कौन गोटे ड्रेस पिंधती आमे भी आमर पोशाक बदलाती तो सहीपरी आत्मा मध्य तार पोशाक बदलाए सेटा हूँ कौन से एक प्राणीर देह बुझीगला तो सही कथा से कहते चाहते जे आम कौट रखते हाँ सिंहनाद आसन्ते प्रसर पवन सबदे कंपु अच्छी मृत्युजय भुवन काला नल जानी विकासी सिंहनाद ज्योति एठी आ गोटे कथा ये जो भुवन माने घर बुझीगला एठी घर आ गोटे समानार्थी शब्द हूँ कौन भुवन तो काला नल जानी काला अनल काला एठी जो काला नल हूँ दीटा जोड़ा है काला गोटे अनल काला कौन काला माने मृत्यु माने भयंकर सेटा कौन कहते काला तो नल अनल माने कौन अनल माने हूँ अग्नि बा निया तो एठी तुम आ गोटे कौन पाइगल समानार्थी शब्द जार नाम हूँ कौन अनल कहार अग्निर तो अग्निर अनल लिखिपर निया लिखिपर तो सेमती काला नल जानी विकासी सिंहनाद ज्योति विकासी माने विकसित होई माने तादरू बाहर क्या सिंहनाद रु गोटे ज्योति बाहर जोटा कि पूरा जमी देखा जादू अग्नि बाहर जमी आम जाचे आम जो कौन देखती आम जो उल्का पिंड खसुवर देखती जमी रकेट गला बेले पक्ष गोटे निआ बाहर थाए आम चित्र भी सेमती करती तो से अनुसार सी भी जिते आसूची जमी लगुच सी पूरा जली 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 आसूची समस्त जल 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 आसते जोर शब्द कर पूरा पृथ्वी कंपुची बुझेगला काला नल जानी विकासी सिंहनाद ज्योति आदित्य हूँ सतगुण तेज विकास आदित्य की स्वयं होती रवि बा सूर्य तो ये आउ गोटे जमी आसगला कौन तुम समानार्थी शब्द सूर्यंकर आदित्य तो आदित्य हूँ सते गुण तेज विकास मैं भर जो सिंहनाद ज्योति सिंहनाद जो ज्योति बाहर से ज्योतिटा आदित्य बा रवि सूर्य सत गुण तेज
सूर्यंकर जतिक तेज अच्छी तार 100 गुण तेज किए विकास करुच्ची माने काठू बाहर सिंहनाद ठू बाहर अंतरिक्षे आसी प्रवेश होइला व्यास सरोवर तीरे पांडव सुंदर भीम धइला ताहा करे। तो अंतरिक्ष अंतरिक्ष माने आकाश ओके अंतरिक्षे आसी आकाश आसी बा उपरू आसी कौटी प्रवेश होइला व्यास सरोवर तीरे तीरे माने आम जो कूल ये आ गए लेख तीर तीर माने कूलर समानार्थी शब्द कौन तीर तरे दीर्घईकार र तो व्यास सरोवर माने पोखरी ये सरोवर माने कौन पोखरी तो लेख ये सरोवर सरोवर माने हूँ पोखरी। तो अंतरिक्ष आसी प्रवेश होइला व्यास सरोवर तीरे पांडव सुंदर भीम धइला ताहा करे। तो पांडव सुंदर किए पांडव सुंदर भीम एठी तांको टिके वर्णना करा जायछि केमते पांडव सुंदर भीम धइला ताहा करे करे माने कर कर जो कर रो एठी अर्थ होछि हाथ तो हाथर आ गोटे समानार्थी शब्द आम कौन जानले कर पांडव सुंदर भीम धइला ताहा करे तामाने अंतरिक्ष जो आसीथिले सिंहनाद तांको किए कररे धरले बा किए हस्तरे धरले भीम धइले आरे आरे निशत किंपा हेउ मान गोविंद करे धरी पांडव ताहा चुंबिला सिंहनाद बुझेगला आरे आरे निशत किंपा हेउ मान गोविंद किए मान गोविंद होचंती दुर्योधन तो दुर्योधन कौन कहले माने से दुर्योधन को धिक्कार करी कहया चाहछन किए भीम कारण जदि एमती न कह से बाहर ना तो से एमती मन जो गोटे राग अच्छी कारण कहीं कौन पे राग अच्छी प्रथमे जो खेल खेल डाकी से खेल खेलू स्त्री को अपमान कले स्त्री नाम कौन द्रौपदी द्रौपदी को अपमान कले तापर सभारे अपमान कले तापर कौन कले 13 वर्ष वनवास पठेदेले राज्य छड़े नेले पुणी बहुत पूर्व बहुत जिनस होती तो यही सब जिनस को मन भितर रखी से रागिकी कारण से चाहूँगी जे मान गोविंद को हरइबे मान गोविंद को माने कुकर्मर शास्ति देवे किए भीम से भर्त्सना करी कौन कहते आरे आरे निशत किंपा हेउ मान गोविंद आरे आरे निशत किंपा हेउ मान गोविंद करे धरी पांडव ताहा चुंबिला सिंहनाद तामाने तू बलहीन कहीं जाऊँ आरे आरे निशत किंपा हेउ मान तू बलहीन होकर कहीं लुचिकी बसचु एमती भर्त्सना करी कौन कले पांडव माने से भीम कौन कले सिंहनाद को फुंकिया को आरंभ कले आक्रेषण सिंहनाद भीमसेन गाढ़े कले वाद्य महिमंडल कंपिला प्रथम शबद तो कौन आकर्षण आक्रेषण आक्रेषण मैंने हस्तरे धरिकी हस्तरे पूरा जाबुड़ी धरी आकर्षण करी धरी सिंहनाद को भीमसेन गाढ़े कले वाद्य तो भीमसेन कौन कले ना फुंकिले बा से ध्वनि बाहर कले ओके महिमंडल कंपिला प्रथम शबद महिमंडल माने आमर भूमंडल बा आमर ई मही मही माने पृथ्वी एठी तुम आ गोटे जिनस मिलला मही मही माने ए माटी बुझीगला तो महिमंडल कंपिला प्रथम शब्द रे कौन हेगला पूरा महिमंडल कंपी गला नलिनी पत्र रे जेन्हे पड़ंतेण पानी पृथ्वी दल दलित कंपई मेदिनी तामान से कौन कहले एठी नलिनी पत्र रे जेन्हे पड़ंतेण पानी नलिनी पत्र माने पद्म पत्र रे जेमती पानी पड़ी दोहले पद्म पत्र पानी पड़ले कौन हुए पानी लाखिकी रुहेनी से हलु थाए सब से पानीटा सेमती पृथ्वी दल दलित कंपई मेदिनी तो पृथ्वी अवस्था सेमती पृथ्वी दोहलुची कौन कारण सिंहनाद शब्द होना तो से प्रथम शब्द पृथ्वी पूरा कंपी गलानी ओके
मेदिनी माने आम जहाँ पर ठिया होचे बा माटी संचा छाड़ी करी जे बुलई मंदर मान गोविंद निद्रा भांजी उठी बसिला धातिकार संचा छाड़ी संचा माने सी धर आमे गोटे जिनस गोटे जगह रखीचे से जगार बाहरी गले कौन कहती संचा छाड़ी बा से जगह जो जगार धर रखाई तुम टीवी गोटे जगह रखाई जदि जदि मु कौन करी गोटे टेबुल ऊपर तुम टीवी रखाई मुझे कौन करी टेबुल टाक हल्ले तो तुम ऑब्वियसली तुम टीवीटा भी घुंचीज से कथा से कहूँ जदि एवं महीमंडल ही हल्ला टोटाल आम पृथ्वी ही हल्ला ताले आउ मंदर पर्वत आमती स्थिर होकर रे टे संचा छाड़ी करके घुंची गला किए मंदर पर्वत तो मान गोविंद निद्रा भांजी उठी बसिला धातिकार मान गोविंद किए होती दुर्योधन दुर्योधन को निद भांगी गला से कम शोई ना बहुत परिश्रम बहुत कष्ट कारण 11 दिन युद्ध होता तो 11 दिन एपर्तंत 11 दिन है एपर्तंत 10 दिन आ जो 11 दिन युद्ध नुह सरी 18 दिन महाभारत होता तो 17 दिन से युद्ध करता ना ये जो युद्ध पूर्व तो से 17 दिन जो युद्ध करते से 17 दिन जो देह भितर पीड़ा अच्छी देह भितर जो क्रोध अच्छी जे अनेशत भाई को मारिदे भीम तापर परम मित्र कर्ण को मारिदे से जहाँ प्रति विश्वास करी जो युद्ध जीतबे बोली भाभी जमीक द्रोणाचार्य आउ स्वयं भीष्म से कह बल कौशल रास्तार हटाई देले पांडव मान से सब जिनस को लेकिन क्रोध मान यही सब जिनस नहीं क्षत विक्षत तापर निजे थकी जाइए यही सब जिनस को लेकिन से कौन करते ना से जाइए मान सरोवर व्यास सरोवर टे शोई पड़ी तो से जो मान गोविंद निद्रा भांजी उठिला घाटिका से निद्रा भांगीगला से बहुत जल्दी तत्तर हो उठी पड़े कहीं ना ये जो बाजुची कौन गोटे शब्द ठीक है तुम घर जमी कलिंग बेल बाजे तुम शोई था 2-3 थर किए गोटे कलिंग बेल बजेला तो तुम हठात उठी पड़ दौड़ तुम मेन डोर पाखक जे कलिंग बेल किए बजेला खोज तो सेमती से जिनस भीम ये कर तापर मान गोविंद निद्रा भांजी उठिला उठी बसिला धातिकार पुण आरेक रडिए दिला वीर भीम छड़ लक्ष योजने आकाशे कंपिला वीर जम ताने कौन पुणी आरेक रडिए देला वीर भीम आउ गोटे रडी किए देले भीम देले छड़ लक्ष योजन छड़ लक्ष मान छड़ मान 6 लक्ष योजन 6 गोटे योजन हूँ गोटे माइल गोटे योजन हूँ के गोटे माइल तो गोटे योजन ओके तो सॉरी गोटे योजन हूँ 8 माइल गोटे योजन हूँ के माइल 8 माइल तो गोटे माइल केते किलोमीटर 1.5 किलोमीटर बा 1.5 किलोमीटर आउ गोटे योजन केते माइल सेटा होची 8 माइल तो 8 माइल गुणन 1.5 ता माने 16 8 माइल गुणन 1.5 माने 12 सॉरी 12 गोटे गोटे योजन होची 12 किलोमीटर गोटे योजन होची केते किलोमीटर 12 किलोमीटर हम देखि दवा एठी एठी कोन लिखिली मु एक योजन 8 माइल 1 माइल 1.5 किलोमीटर तो 8 माइल हम 8 इंटू 1.5 जोटा कि 12 किलोमीटर तो गोटे योजन केते किलोमीटर 12 किलोमीटर तो सेमती केतेटा योजन होला 6 लक्ष योजन मान 6 लक्ष गुणन 12 लक्ष किलोमीटर पर्यंत आकाश रे माने तार तार पूरा देख जते शब्द जाए शब्द तो गोटे दिगरे जाए ना शब्द पूरा 4 दिगरे जाए ठीक अच्छे तो सेमती 4 दिगरे
कंपीगला शब्द केते पुरुषरे केते 6 लाख योजन बुझला पाताल किए कंपीगले ना जमपुर से स्वर शुभिला क्या जमंकु स्वयं जमंकु बा स्वयं कालंकु के क्या शब्द शुभिला ये जो भीम सिंहनाद रड़ी दौरान जो द्वितीय रड़ी जो छाड़िले बाहर कले सिंहनाद पाताल अनंत नागर कंपिलाक फेरु नवद्वीप सपत सागर कंपिला टळमळ होइलाक मेरु पाताले अनंत नागर कंपिलाक फेरु तो फेरु माने एठी फणा है तो अनंत नाग कौट से अच्छा पाताल अनंत नाग कौन कर पृथ्वी को टेकिकी रखिंट ना नहीं तो पाताल अनंत नागंकर फणा दोहली गला बुझीगला माने एमती से शब्दर शक्ति अच्छी नवद्वीप बा 9टा द्वीप आगुरी आम कौन कहला ना स्वयं पूरा माने जितेबाला द्वापर युग थिला सेतेबेले आमर कौन पूरा विश्वटा 18टा द्वीप को लेकिन गठित होता तो तापर कौन है ना 18टा द्वीप मध्य 9टा द्वीप को लेकिन भारत गठित है तो से जिनस से कहते नवद्वीप नवद्वीपर सब नाम तम तला दे इंद्रद्वीप नागद्वीप सौम्यद्वीप वरुण द्वीप ये सब द्वीप कुमारिका द्वीप तो एमती 9टा द्वीप अच्छी आउ 7टा सागर अच्छी 9टा द्वीप 7टा सागर सबू टळमळ होइला मेरु माने पर्वत ये आउ गोटे जिन लिखिदियो मेरु अर्थात पर्वत यहाँ आउ गोटे तुम समानार्थी शब्द सपत सागर सागर माने समुद्र सपत माने 7टी तो 9टा द्वीप और 7टा सागर कंपीगला आ मेरु पर्वत मान सब टळमळ होइगला आदित्य भूमंडल ध्रुव मंडल अमर मंडल आकाशे लागिला उछुलिला सिंधु जल कौन कहले आदित्य भूमंडल ध्रुवमंडल अमर मंडल आदित्य माने सूर्य जो सूर्यंकर मंडल बा सूर्यंकर स्थान कौटी अच्छी आम आमे 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 आम क्यों गैलेक्सी बा आमे कौन कहते आमे आकाश गंगार आम जो सौरमंडलटा कौटी अच्छे आकाश गंगा भितर अच्छी तो सौरमंडल मुख्य किए सूर्य तो से तो परिवार रे मंडल से गोटे कंपमान करला कौन है ना आदित्य भूमंडल भूमंडल माने आम जो रोचे ध्रुवमंडल माने तारागण पाखे अमर मंडल माने स्वर्ग माने रडीटा एते माने काटु करुला आकाशे लागिला उछुलिला सिंधु जल माने सिंधु नदीर जल एमती उछुलिला जे आमर जे आकाश लागिला परे मन होउतला रेरेकार शब्द रेरेकार करी राजा धृतिराष्ट्री बक्षस्थले मारी बाहास्फोट गर्जिण बेगे उठी रेरेकार माने सी भी माने रागी गले दी थर बजे सारे आ सही पार से कौन कहले ना रेरेकार करी राजा धृतराष्ट्री तो धृतराष्ट्री की धृतराष्ट्र पुओ धृतराष्ट्र पुओ किए केवल जड़े ही बच दुर्योधन तो दुर्योधन तो कहले अरे माने रे कार शब्द जमती आम जन को जो आम देखी चलचित्र फिल्म मूवीज फिल्म देखी कौन देखी ना जो हीरो फाइटिंग लगे कि हीरो विलेन भितर फाइटिंग लगे माने हीरो गोटे चिल्लैकी आसे सेमती हीरो की विलेन चिल्ला चिल्ली होके आसती बाड़ा बाड़ी हवा पूर्व सेमती सी भी रेरेकार शब्द करके राजा धृतराष्ट्री बाहर बक्षस्थले मारी बाहास्फोट बक्ष माने बक्षस्थले मारी बाहास्फोट गर्जन बेगे उठी तो बक्षस्थल बाहास्फोट मारिक माने गोटे उठिकर दंभर सहित किए स्वयं मान गोविंद बा स्वयं दुर्योधन बाहास्फोट गोटे मारिकी उठिकी गर्जन माने गर्ज करके जल्दी उठी पड़े महागगन निश्वास बुलाई बेनी डोला सबुआड़े पूरा आखि चारिपटे डोला बुलाई देले किए स्वयं दुर्योधन
ବେନି ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧଇଲେ କମଳା। ତ ତାକୁ କିଏ ଧଇଲେ? ବେନି ଭୁଜରେ, ବେନି ମାନେ ଦୁଇ, ଭୁଜେ ମାନେ ଭୁଜ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ ଭୁଜ ମାନେ ହସ୍ତ, ବୁଝିଗଲା। ତ ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧଇଲେ କମଳା, ଆକ୍ରୋଶୀ ମାନେ ଆକର୍ଷିତ କରିବା, ଜାବୁଡ଼ି, କିଏ ଧଇଲେ ତାକୁ? କମଳା। କମଳା କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ? ନା ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଲେ। ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପ୍ରତଜ୍ଞା ଯେ କଲୁ ବାବୁ, ବୋଇଲୁ ଯେ ଭୀମର ସାତ ରଡ଼ି ସହିବୁ। ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇକି, ସିଏ ଦିଟା ରଡ଼ି ଦଉ ଦଉ ତୁ ଏମିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇକି ରେରେକାର ଶବ୍ଦ କରିକି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିକି ପୁରା ଉଠିକି ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲୁଣି? ତୁ ବା ମୋତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ଯେ ଭୀମ ଯଦି 7ଟା ରଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦିଏ ତାହେଲେ ବି ତୁ ସହିବୁ। ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ଦିଟା ରଡ଼ିରେ ମାନେ ନିଜର କ'ଣ ନିଜର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥାଏ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ନିଜର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଯମତା ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ହରେଇକି ତୁ କ'ଣ ପୁରା ଗଲୁଣି ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ? ମାନଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜଦଣ୍ଡ ଦିଲା ପେଲି, ସେ କ'ଣ କଲା? ତା ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର କ'ଣ ହାତ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ, ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ପେଲି ଦେଲା। କିଏ? ମାନଗୋବିନ୍ଦ। ଅଧର ପୃଷ୍ଠ କରି ପଳା ଯା ବୋଲି ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ପଳା, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛୁ ପଳା, ତୁ ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ। କିଏ କହିଲେ? ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। କାରଣ ସେ ଏବେ ବହୁତ ରାଗିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଭୀମ ବହୁତ ରଡ଼ି ଦେଲେଣି ଯେ ଆସ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ, କାରଣ ତୁ ବହୁତ କୁକର୍ମ କରିଛୁ, ବହୁତ ପାପ କର୍ମ କରିଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ଲୁଚିକି ଯାଇକି ବସିକି ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ନା ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ରଡ଼ି ଦେଲେ, ଯେମିତିକି ସେ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିବ। ତ ସେଇ କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ରାଗିଛନ୍ତି। କିଏ? କାରଣ ତାଙ୍କ ନିଦ ବି ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମିତି ସବୁ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ୁଛି କିଏ? ସିଂହନାଦ। ତ ସେ ଆଉ ସହି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାଳି ଏତେ ବାଟ ରହିଥିଲେ, ସେ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଗଲେ। ଯାହା ପାଇଁ କି ଏଇ ଯେଉଁଟା ଦେଖିକି କ'ଣ ହେଇଗଲେ ନା, ଗୋଟେ ଯେହେତୁ କମଳାଙ୍କର ପୁଅ, ମାନେ କମଳା ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ଭାବନ୍ତି, କାହାକୁ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ତାର ପରାଜୟ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବାହାରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା କ'ଣ? ଭୀମ 7ଟା ରଡ଼ି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବା ସେ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା? ତ କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ରାଗିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ମାଆକୁ ବି ଅସମ୍ମାନିତ କରିଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି ପଳା ବୋଲି କହିଲେ, ଗାଳି ଦେଇ ପଳା ବୋଲି କହିଲେ। ଓକେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ସେ ପେଲି ଦେଲେ। ମହାଲ ଅଛି ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉ ଅଛିନି ମୁହିଁ, ତୋହର ଭର୍ଚ୍ଛନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତା ବାଟ ଚାହିଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ପଳାଉଛି, ତୁ ଏବେ ମୋତେ ଏତେ ଗାଳି ଦେଲୁ, ଏତେ ମୋତେ ଖରାପ କରି କହିଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋର କଥା ମାନି ମୁଁ ପଳାଉଛି। ତୋହର ଭର୍ଚ୍ଛନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତା ବାଟ ଚାହିଁ। ଯେମିତି ମାଆଙ୍କ ମନରେ ବା ମା ବାପାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ମା ବାପା ମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ଦୁଃଖ ନିଜେ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ? ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ତାଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଭଲ ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଓକେ, ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାପା ମା ଭାବନ୍ତି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଓଲଟା କରେ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ବାପା ମାଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ତୁମେ କନ୍ଦେଇବ ନାହିଁ, କି ବାପା ମାଆଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ପିତା ମାତା ଆଶୀର୍ବାଦେ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ, ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ସୁଖୀ ହୁଏ କୁଳପାଳ ରଖି। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ପିତା ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ରୀ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ରୀ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କୁଳର ବିନାଶରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରିପାରିଲେନି, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ
କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ କାହା କଥା ମାନୁ ନଥିଲେ, ନିଜେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ଧର୍ମ ହଉ ଅଧର୍ମ ହଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେପରିକି ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାସୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଉଜ ମା ସମାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଦାସୀ ବୋଲି କହିକି ତାଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଆଉ ବହୁତ ଖରାପ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ବୁଝିଗଲା? ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉ ଅଛିନି ମୁହିଁ, ତୋହର ଭର୍ଚ୍ଛନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ଚାହିଁ। ମାନେ ତୋର ଏଇ ଯୋଉ ଗାଳି ଦେବା, ତୋର ଏଇ ଯୋଉ ଭର୍ଚ୍ଛନା କରିବା, ତୁ ଯୋଉ ମତେ ଏମିତି ଧିକ୍କାର କରି କହିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିଲି। ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ମା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୁଁ ତ ତୋର ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ବସିଥିଲି ନା, ଯେ ତୁ ମତେ ଗାଳି କରିବୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଶୁଣିବି ବସିକି। ତ ତତେ ମୁଁ ମନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁ ଯାଆନି ସେଠି, କାରଣ ତୋର ସେଠି ବିଜୟ ଲେଖା ନାହିଁ, ତୋର ସେଠି ପରାଜୟ ହିଁ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ନେଲି ଯେ ତୁ 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ କଲୁ ନା ମୋ ହାତ ପେଲି ଦେଲୁ ଆଉ ମତେ ଧିକ୍କାର କରି ପଳା ବୋଲି କହିଲୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତୋ କଥା ମାନି। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲେ ଆବର ରଡ଼ିଏ ଯେବେ ସହିବୁ ପାମର, ଏରଡ଼ି ସହିଲେ ତୁରେ ହୋଇବୁ ଅଜରାମ୍ବର। ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆବର ରଡ଼ିଏ, ମାନେ ଆଗକୁ ଯୋଉ ରଡ଼ି ଆସିବ, ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ରଡ଼ି ଯୋଉ ଆଉଛି, ଯାହା ବି ରଡ଼ି ସେ କରୁଛି, ଓକେ, ଯଦି ତାକୁ ତୁ ସହିଯିବୁ, ଓକେ, ଯଦି ତୁ ତାକୁ ସହିଯିବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ପାମର ମାନେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମୂର୍ଖ, ମାନେ ମୂର୍ଖ ହିସାବରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଧରନ୍ତି, ଓକେ। ତ ପାମର ମାନେ ବାପା ମା ଯେମିତି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଆରେ ପାଗଳ, ଆରେ ଯେମିତି ବାପା ମା ମାନେ ସବୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାନେ ପୁଅ ଭଳି ଯାହାକୁ ମାନିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଆରେ ପାମର, ତୁ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଭୀମ ଯୋଉ ରଡ଼ି ଛାଡୁଛି, ତ ସେ ରଡ଼ି ଯଦି ସହିଯିବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବୁ ନା ତୁ ଅଜରାମ୍ବର ହେଇଯିବୁ, ମାନେ ଅଜର ଅମର ହେଇଯିବୁ। ଅଜରାମ୍ବର ମାନେ ଏଇଟା ଦିଟା ୱାର୍ଡର ମିକ୍ସ, ସେଟା ହଉଛି ଅଜରାମ୍ବର, ଯୋଉଟା କି ଶାରଳା ଦାସ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଜରାମ୍ବର ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ଅଜରାମ୍ବରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଜର ଓ ଅମର। ତ ଅଜର ଓ ଅମର ହେଇଯିବୁ କ'ଣ, ଯଦି ଏଇ ସବୁ ରଡ଼ି ସହିଯିବୁ। ଏତେ ବୋଲି ତତକ୍ଷଣ ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, କଦଳୀ ପତ୍ର ପାଏ କମ୍ପଇ ମହାତମୀ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଏତିକି କହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳେଇଲେ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ମତେ ଏମିତି କରି କହିଲୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ କିନ୍ତୁ ତତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଯେ କ'ଣ ତୁ ଯାହାବି ଏଇ ଯୋଉ ରଡ଼ି ଛାଡୁଛି, ସେ ଯଦି ତୁ ଆକୁ ସହିଯିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଅଜର ଅମର ହେଇଯିବୁ। ଏତେ ବୋଲି ତତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, କଦଳୀ ପତ୍ର ପାଏ କମ୍ପଇ ମହାତମୀ। ତ ମହାତମୀ ମାନେ ତମ, ତମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଦେଖିଛ, ତମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ, ଏ 3ଟି ଗୁଣ ଥାଏ, ଓକେ। ସତ୍ୱ, ରଜ ଆଉ ତମ, ସେଟାକୁ କେତେବେଳେ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ। ତମ ମାନେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ତମସା, ତମସା ମାନେ ଅନ୍ଧକାର, ମାନେ ଅନ୍ଧକାରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ତମସା, ବା ରାତିରେ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ବା ଯୋଉ ରାଗିକି ତୁ ଅଛୁ, ଯୋଉ କ୍ରୋଧରେ ଅଛି, କିଏ କ୍ରୋଧରେ ଅଛି? ମହାତମୀ ବା ମହାକ୍ରୋଧୀ କିଏ ଅଛି ଏବେ? ସ୍ୱୟଂ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କଦଳୀ ପତ୍ର ପାଏ କମ୍ପଇ, ମାନେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଯେମିତି ହଲୁଥାଏ ସବୁବେଳେ, ସେ ସେମିତି କମ୍ପୁଛି, କିଏ ରାଗରେ? କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। 70 ଭାର ଗଦା ଘେନି କରସ୍ଥଳେ, ଖେପଇ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରାଳେ। ତା ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଗଦା ଅଛି, ସେ ଗଦା ହଉଛି କେତେ? 70 ଭାର ଗଦା, ସେ ମାନେ କରରେ ଧରି, ହାତରେ ଧରିକି, ଖେପଇ ମାନେ ଡେଇଁକି, ଖେପଇ ମାନେ ଫୋପାଡ଼ିକି ବା ଡେଇଁକି ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରାଳେ, ତା ମାନେ ପୁରା ବାହାରକୁ ଆସିକି, ଯେମିତି ଭିତରେ ଥିଲେ ନା ମାନଗୋବିନ୍ଦ, କାହା ଭିତରେ ଥିଲେ? ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ଥିଲେ, ସେଠୁ ଡେଇଁ ଆସିକି କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି? ଭୀମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି, କାହା ସହିତ? ଭୀମଙ୍କ ସହ।
देख ये लिखाई सिंहनाद कौन महिषी सिंह निर्मित एक वाद्य शिव भैरव रूप धारण कर सिंहनाद कले पृथ्वी में प्रलय हुए पूर्वे अश्लेष दैत्य कैलाश उपाड़ी नेउथुवा बेले ऋष्यमुख पर्वत भीम को शिव डाकिले भीम अश्लेष दैत्य को मारी कैलाश उद्धार कर शिव भीम को वर जाचिथिले से वर को स्मरण कराई भीम शिवों ठारू यह प्राप्त हेले और दुर्योधन को व्यास सरोवर बाहर करने सिंहनाद रड़ी छाड़ी बुझीगला ये सब तार सब अच्छी। हाँ मत जड़े स्टूडेंट पचारे जे कौन ना सरलार्थ केमती लिखिया बहुत भल सरलार्थ केमती लिखिपर जे कौन कौन कर सरलार्थ लिखापी तो सरलार्थ लिखापी आम कौन कौन कर गोटे छोट जिनसटे कह बेसी बड़ भी नुह कि बेसी ना बेसी अधिका तुमको लिखार अच्छी ना बहुत कम तुमको लिखार जी दरकार तुमको से लिखार अच्छे तुमको धर मन कर एम लिखाई मोटे छोट जिनस कहीदे ये पद्य ना कहीदे पद्य मनकर क्वेश्चन क्वेश्चन थी ना आम क्वेश्चन करदे छड़ा संकट काले तुम्भंत उद्धारंती पुण दियसी सिंहनाद प्रसन्न बदन। ओके तो आम लिखिया यहाँ छोट करदे आम संकट काले तुम्भंत उद्धारंती पुण संकट काले तुमको उद्धार करते किए तुमको उद्धार करते भीम दियसी सिंहनाद प्रसन्न बदन। ओके तुम एम लिखुव संकट डट डट बदनेण ठीक अच्छे देख संकट डट डट बदनेण तो तापर तुम लिखुव उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य बहीर यही विषय आसी यार कवि सारला दास से आम ओडिया साहित्यर आदि कवि बोली परिचित एमती लिख कौन कौन दिखाई ये आग तुम लिख कवि परिचय लिखिदेव विषयर क्यों विषय आसी लिख प्रथम जो स्टांजा ओके क्यों विषय आसी द्वितीय स्टांजा यहाँ हूँ प्रथम स्टांजा यहाँ हूँ प्रथम उक्त पद्यांशटी क्यों बही आसी कवि किए ये कौन लिख विषयर नाम कवि परिचय आ कवि को कौन कौन सम्मान मिली आउ कवि एठारे कौन कहया चाहते एठारे छोट हिसाब लिख एठारे कौन कहवाकू चाहते मुझे लिखिपारि मुझे लिखिपारि सारला दास एठारे कहवाकू चाहते जे एठारे सारला दास यह लिखिं कि पार्वती माता शिव विचार लोड़ी एवं पार्वती माता बा पार्वती माँ बा उमा महेश्वर को निजर कौन निजर मन भीतर जो कथा अच्छी निजर विचार बा विचार तुम लिखिदेव निजर विचार शिवों निकट में प्रकाश करमती कहीपर ओके तो कौन लिखिपर ये ना स्वयं सदाशिव बा स्वयं शंकर पार्वती माँ को उपदेश मागी पार्वती माँ सहित विचार कर पार्वती माँ बा उमा शिवों को निजर विचार व्यक्त करमती लिखिपर बुझागला तापर कौन लिख एठी कौन लिख एठी तुम कौन लिख तुम ये लिख जे कवि कवि परिचय लिख सम्मान लिख एगुड़ा सब लिखि सारा एटी लिख स्टार्ट कर कवि विषय किसी लिखनी ये पूरा विषय वस्तु स्टार्ट कर कौन ना टिके पूर्व को जीव यही जो
ये जो पद्यर टिके पूर्व को जीव कौन है टिके पूर्व को जीव टिके वर्तमान जिनस लिख तापर शेष जिनस लिख तो वर्तमान रे कौन लिख पूर्व रे कौन लिख पूर्वर भी एते पूर्व को जीवा दरकार नहीं जमती कि धर ये लिखाई जमती कहुई कौन ये कौन कहबू ना पार्वती माँ स्वयं भीम जिते बड़े तपस्या कर भीम जिते शिव को ध्यान कर शिव भीम जिते सिंहनाद शिव को ध्यान कर लिखे भीम जिते सिंहनाद शिव को ध्यान कर स्वयं ईश्वर पार्वती माँ विचार लोड़ी जहाद्वारा कि पार्वती माता तांको समस्त पांडवंकर भल गुण गुड़ी को बखाणी एवं कही जे पांडव माने बहुत उपकारी और से माने आपण को सुरक्षा प्रदान करिसेंती जहाँ आपण सेथिपाई सेमानंक संकट काल रे बा जो माने आम संकट काल रे आंब को साहा होइछंती देख संकट काले तुम्भंत उदाहरंती पुण ता जो माने आमको संकट काल उद्धारिछंती सेमानंकु आमे प्रसन्न बा सेमानंकु आपण प्रसन्न मुखरे तांकर मागुथिबा वस्तु वरदान स्वरूप देवा दरकार तो ये कह लिखिपर तुम कौन लिख ना प्रथम जिते बेले भीम सिंहनाद शिवंकर ध्यान करिसेंती स्वयं शंकर उमा निजर विचार लोड़ी यह शुणी उमा शिव को पांडव मानकर भल गुण गुड़िक बखाड़ी जेपरिक से किपरि कैलाश पर्वत को बंचाई से किपरि संकट काल शिव को साहा होते ये सब मन पकई एवं तापर से शिव को प्रार्थना करिसेंती जे संकट काल जो माने आमर उपकार करथिले सेमानंकु प्रसन्न मुखरे तांकर इच्छारे तांको इच्छाकृत वस्तु प्रसन्न मुखरे वरदान स्वरूप देवा पाई बुझीगला यह कही पार्वती शिव को समस्त एठारे कवि यह दर्शाई शेष कौन लिख एठारे कवि यह दर्शाई शेष तुम ये हूँ सरलार्थ लिखिपर यही गोटे छोट छोट सरलार्थ लिखिपर बेसी बड़ लिखा दरकार नहीं कि बेसी छोट लिखा दरकार नहीं आउ एमती तुम चेष्टा कर जे पूर्व जो से लाइन रो जो पूर्व पार्ट को टिके जीव से पूर्व पार्ट को तुम एमती लिख जे तुम पूर्व पार्ट रे किछि छाड़ी ही जानु तो जेमति मु एबे कहली भीम शिव को कौन पे ध्यान कले सिंहनाद पई तो तुम से पूर्व पाठ को केमिति गल तुम माने पूर्व लाइन को तुम केमिति गल ना तुम एमती स्टार्ट केमिति कल ना भीम जिते बेले भीम सिंहनाद एमती लिख भीम सिंहनाद जिते बेले शिव को ध्यान करती सेते बेले स्वयं ईश्वर उमा विचार लोड़ी एवं उमा उमा कौन कौन कर उमा पांडवों का भल गुण सब कहते से कौन कौन उपकार कर सब एगुड़ा सब मन पकई तुम कौन लिख ना उमा शिव को पांडवंकर भल गुण गुड़ी शिव सम्मुख में उमा पांडवंकर भल गुण गुड़िक बखाणी एवं तांकु पांडव माने किपरि संकट काल सहायता प्रदान करथिले से सब मध्य मने पकाई देइछंती एवं शेष में शिव को प्रार्थना करिछंती जे कारण शिव होउछन उमांगठू बड़ तो सेतिपई सब बेले आमे जतेबेले बड़ लोक को कहंती किछि सेटा को आमे प्रार्थना बोली कहंती ओके तो पार्वती प्रार्थना करिछंती शिव को जे जो माने हमर संकट काल सहाय होइतिले सेमानंकु प्रसन्न मुखरे वरदान स्वरूप सिंहनाद देवाई और यह कवि एठारे दर्शाई शेष बुझीगला यहीपरी तुम सब सरलार्थ लिख आउ जहाँ भी क्वेश्चन आंसर रहा लिख
जदि किसी क्वेश्चन आंसर बुझी पारन से हिसाब रे मु मो कांटेक्ट नंबर भी देछि माने मो व्हाट्सएप नंबर देछि सेते तुमे क्वेश्चन पचारि परियो मु सेते तुमको आंसर दे देबी ए विषय रा ओके गुड लक स्टे सेफ।